if you think about what has changed, everything has changed. मेरे खुद की हैबिट्स चेंज हो गई हैं. कोई 4 या 5 या 6 पैरामीटर्स अगर आपको बताने हैं कि ये तो इंश्योर करना ही करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, तो वो क्या होंगे फॉर अ न्यू ब्रांड? लास्ट डिफाइन ब्रांडिंग. क्या मंथली बजट में स्पेंड करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर आप बता सकते हो तो. इफ यू आर बर्निंग मनी इन द बिगिनिंग, लेट इट बी, right? Because you can afford that now. You are a big brand now. You have those deep pockets. Leverage that. So, welcome everyone. This is episode 2 of our podcast, Raw and Real, selling on Amazon. So, again, I'm back with a different t shirt. Shazib is also here with a different shirt. But the agenda remains same. With this podcast, the idea is to help brands who are upcoming on Amazon or who are already selling on Amazon, how we can help them scale, help them grow with different strategies that we have learned over the past 6-7 years, right? So, welcome, Shazib. Hi, Himanshu. Awesome. So, agenda for today would be what has actually changed on Amazon over the last couple of years. क्या नई चीजें ऐसी आई हैं, कैसे ये लैंडस्केप बदला है over the last 6, 7, 10 years, right? And how a brand who is just starting out can scale up. So that would be the agenda for today. With that said, I would love to start with from the very beginning. I think you're working with brands since very long, and year on year changes are happening, right? So I would love to know your perspective कि ऐसा क्या पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में बदला है. What are the top level bird's eye view that you can give to the audience? If you think about what has changed, everything has changed in the last 7 years, 8 years on Amazon. Whenever I talk to someone who has been selling on Amazon from the starting, they tell you that the success rate at the start of the when Amazon started in India was very high, and the operational and ads scaling related challenges were very low. मतलब कोई भी कुछ भी लिस्ट करता था, बेसिक इमेजेस, बेसिक टाइटल, दे यूज्ड टू गेट ऑर्डर्स, दे यूज्ड टू गेट विजिबिलिटी. कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, वो डिफरेंट होता था, पर ऑर्डर सबको आते थे. राइट नाउ दी सेम पीपल विल टेल यू कि अभी मैं नया नया कुछ लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, लॉट ऑफ ब्रेन गोज बिहाइंड इट, बट स्टिल इट डजंट वर्क. अब आई नो व्हाट दी पैरामीटर्स आर जिसकी वजह से ये हो रहा है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल टुडे. बट क्यों चेंजेस आए हैं ये? क्योंकि ऑब्वियसली एज अ प्लेटफॉर्म Amazon wants to promote better customer experience. At the end of the day, Amazon is a CX platform, a marketplace which promotes better customer experience for buyers. And over the last 7-8 years, the whole DTC experience has also changed. पहले लोग बस एक सामान मंगा रहे थे ऑनलाइन, एंड the whole experience was मेरे को घर बैठे बैठे मिल गया है. अभी the whole experience is मेरे को बेस्ट चाहिए और मेरे को जल्दी चाहिए. अभी पर्सनली ऑल्सो अगर मैं कुछ सामान ऑर्डर करता हूँ, मुझे 3 दिन बाद Amazon से मेल आता है सुबह कि इट विल बी डिलीवर्ड टुडे. मुझे याद नहीं होता है कि क्या ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है अभी. अब मैं सोचता हूँ यार क्या ऑर्डर कर दिया था जो आने वाला है, वही अगर वो नेक्स्ट डे आ रहा है, आई एम एक्साइटेड, आई नो क्या ऑर्डर किया था, क्या आ रहा है. सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस खराब हो गया, मेरे खुद की हैबिट्स चेंज हो गई हैं, एंड यू हैव टू एज अ ब्रांड यू हैव टू केटर टू दैट. वरना as we talk about humans, it is a race for survival of the fittest. अगर सामने वाले को याद नहीं है 4 दिन बाद कि क्या ऑर्डर किया था उसने, ऑब्वियसली अगर डिलीवर भी होगा ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, वो एक्साइटेड नहीं है उसको खोल के देखने के लिए, उसको यूज करने के लिए. सो in nutshell, this is what has changed, and this is what brand has to deal on Amazon today. So you said survival of the fittest. Can you define how can a brand, let's say who is already selling or wants to sell on Amazon, wants to start on Amazon, can be fit? What is the definition of that fit? So I'll give you an example of that. Previously, any buyer on Amazon or even in local market, people were not aware of things. People even before buying something, मुझे इतनी knowledge नहीं थी. But with
with all the social media boom, with all the positive aspects of social media, अगर मैं आज जाके पता करना चाहूँ कि what is a better alternative and what a better thing of something I'm using currently, मुझे 4 ऑप्शन पता लग जाएंगे and I can easily know कि उनमें से how do I identify कौन सा इसमें better है. For example, मेरे को अगर एक टॉवेल खरीदनी है, पहले I will just go and buy a towel. अभी मुझे पता है उसमें what is the GSM aspect of it, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे I will know about it. अगर वो एक ब्रांड मुझे वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, if a brand is not able to communicate in its listing, in its A+, तो मेरा एक्सपीरियंस अब वो नहीं रहा जो मुझे पहले चाहिए था. Understood. So customers are more informed. More informed is what I'm trying to say. And you have to provide You have that. to be you have to provide that. You have to be more data backed. Also, I would say right now people want to buy from a brand which is catering to brand experience, trying to improve their experience. अगर मैं कुछ, let's say I'm trying to buy a sauce today, पहले it was just कि मैं एक किसान खरीद रहा हूँ या मैं कोई बड़ा ब्रांड खरीद रहा हूँ या फिर मैं एक लोकल खरीद रहा हूँ. राइट नाउ द एस्पेक्ट कि मैं एक लोकल ब्रांड खरीदूंगा बट इंडियन ब्रांड खरीदूंगा, लोकल ब्रांड खरीदूंगा, बट मुझे पता होना चाहिए कि वो मेरी हेल्थ बेनिफिट को मैटर करता है या नहीं करता, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है. ऑल दैट लेबल पढ़ना लोगों ने सीख लिया है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. फूड फार्मर ने सिखा दिया, लेबल पढ़ रहे हैं लोग, and all that has changed and all that is a very positive change in our society. I think that makes sense. I understand what you're saying. Yes, people are more informed. I think now online shoppers are millennials, Gen Z, right? पहले के online shoppers पहले वाला सीन नहीं है कि मैंने एक सेल्स गाई ने बोल दिया सर ये अच्छा है तो ये ले लो. वो नहीं हो रहा है अभी. Makes sense. They are more informed. Makes sense. So let's say एक नया ब्रांड आता है, Amazon पे they start. बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं उनको इन देयर माइंड. आई एम स्टिल ऑन दैट स्टेटमेंट के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. अगर मुझे जानना है कि फिट की डेफिनेशन क्या है, तो अगर कोई 4 या 5 या 6 पैरामीटर्स अगर आपको बताने हैं कि ये तो इंश्योर करना ही करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, तो वो क्या होंगे फॉर अ न्यू ब्रांड? व्हाट शुड आई टेक केयर ऑफ? So I'll talk in general about what a brand has to do, and उसमें से 90% of it will be common for Amazon also. So सबसे पहले you have to have a clear USP for your product. अगर and you have to communicate that to the buyer. And that USP cannot be that cause you have made that product and cause you have decided that USP, it is a USP. The buyer has to look for that. कि ये मैं ढूंढ रहा था या ये नॉर्मली मार्केट में इसकी जरूरत थी. If that is in your product, if that is communicated, you're able to deliver it fast, you're able to deliver it with an experience that is very seamless, with a channel where they can communicate to you directly with what else they want, what is lacking in your products, all that matters when you are launching a brand. Listening to the voice of the customer, making sure that they have a channel to reach to you, all that matters. Makes sense. So कैमरा में देख के बता रहा हूँ, just make notes if you are starting out your new business. क्या क्या बताया आपने? USP, making sure that USP is communicated in your listings. That's one. And USP is important because it should not be your USP, it should be a buyer's USP. उसे चाहिए. Correct. So market need, you define that USP, and then you make sure that you deliver seamless customer experience through faster delivery, through maybe informing the customer about the product, through after sales service and all that. Then you have to also make sure whatever you are selling, there is a market need for that product. There is some kind of demand on the platform where they are looking for the product that you are trying to sell, right? So that's where these are certain things that a new brand should branding. Define branding. So let's say I am buying a furniture for home and you do not have any branding on it, anything which will remind me that I bought from this brand. Any let's say I bought
sofa, and 1 year down the line someone calls from that company and asks if the sofa is good or not, or do you want anything else, some after sales service, that creates a trust, that creates that the brand is listening and that brand is in market for me even after the product has been sold. Especially for anything related to home and kitchen, anything related which has high ticket value, this is very important right now, that you are communicating to the customer very where they want they to communicate with you. So I recently bought a plant for my office, and I actually ordered from 3-4 brands, multiple price range. I just wanted to see कौन बेहतर है, and then I will multiply the number of orders to them. And what I gained is only 1 or 2 brands in that whole segment are actually have name of their brand on the pack, on the product. अच्छा ब्रांडिंग ही नहीं करी हुई थी product? Zero branding है. Okay. I ordered plants, I ordered hanging things, and also उस पे भी कुछ भी किसी पे भी कहीं नाम ही नहीं लिखा है उनका. And it is funny because every time I talk to a seller, no, everyone talks about I want organic visibility. या branded keyword से ज़्यादा organic visibility कहाँ मिलती है? And if you're not able to make a brand recall for a customer who has bought you, then it is very difficult. तब तो आप फिर Amazon की मर्जी पर हो ना, कि if Amazon is giving you a brand, if is giving you organic traffic or not, you are not doing anything for that, and it doesn't cost you that much to make sure that your name is on the product. Yeah, absolutely. I mean, you're saying building brand recall is important. It could be through putting your name on the product, putting your brand logo. It could be after sale service. It could be support that you offer. It could be product quality. I mean, reasons that you are giving to a customer through which they can, recall your brand and maybe suggest your brand to other people as well, which eventually leads to organic or repeat purchase. As a entrepreneur, as a business owner, you want your brand to be visible to everyone. I recall I was listening to Aman Gupta, and he was saying every time मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं बोट की ही टी शर्ट पहन के जाऊँ. क्यों नहीं पहनूं मैं? इतने सारे लोग मुझे देखेंगे एंड दे कैन रिकॉल कि एक बोट के बंदे को मैंने देखा था. एंड ही यूज्ड टू डू दैट एट स्टार्टिंग, एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि कैसे लोग आके उनसे बात कर लेते थे क्योंकि बोट की टी शर्ट पहनी है कि मैं आपका प्रोडक्ट यूज करता हूँ, अच्छा है, बुरा है, एवरीथिंग. You have to do the same thing with your product also. वो that stands for your company. So grassroots level customer feedback is also important. Very important. Right. Cool. So in general, if I want to understand, I am already let's say, brand on Amazon, right? But people who are listening to this podcast, they might be a seller, they might not be a seller, they might want to become a seller. And even if, let's say, they're already on Amazon, they might be in a different phase of journey, right? I want to understand how the strategy or the approach should change with changing the phase of my journey. So I'll explain this little further. Let's say मैं एक ब्रांड हूँ जो अभी 0 से 5 लाख वाले फेज में हूँ, कि मंथली सेल मेरी अभी 0 से 5 लाख है. एक नेक्स्ट फेज मान के चलते हैं कि मेरी 5 लाख से 15 लाख का फेज है एक, और फिर 15 लाख अबव वाला फेज है. देन फिर उसके बाद एक फोर्थ फेज भी होता है जो स्केलिंग इट फर्दर, लेट्स से 70 80 90 lakhs and a crore a month. So how would the strategy change? How would the approach change? How would the priorities change for these brands? So let's go one by one. When we decided 0 to 5 lakhs, I am taking into account that these people have a certain amount to spend in the market and have a very limited inventory and SKUs also. Let's say 5 lakh के नीचे I am selling and I have 50,000 rupees to spend on ads. In a nutshell, if I'm spending 50,000 rupees in a 30-day period, that amounts to less than 2,000 rupees per day.
Now I'm not left with money to spray and paint and pray कि वो सही जगह लगी जाए. I have to identify my targets very soon, and I have to make sure that I am visible on these keywords and these PT every time someone searches. सो एक नए ब्रांड के लिए कितना पैसा खर्च करने के लिए आप रेकमेंड करो? लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. व्हाट शुड बी माय मंथली बजट फॉर एड्स? I think the monthly budget should be dependent upon number of SKUs or you are launching. So if you are launching, let's say 5 SKUs, it should be 6 to 10,000 rupees per SKU for testing out waters, if that is working or not. Now I will explain how do I make sure that this 6 to 10,000 rupees is ideally used. Okay, define how can it be ideally used? Yes. So let's say I'm launching a book. बहुत ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, दे विल गो एंड स्टार्ट एन ऑटो एड, प्रोडक्ट डाल दिया. बहुत ज्यादा अगर किसी को थोड़ी नॉलेज है वो लूज मैच बंद कर देता है, बाकी तीनों ऑन करके छोड़ दिया है. बट ऑब्वियसली बुक इज अ वेरी wider subject. You will have to understand that you are catering to a certain audience. The more faster you are able to identify that segment is better. So negative keywords update कर देना उस टाइम ही better है While launching the ad. while launching the ad. Fair enough. अगर मेरे को कीवर्ड नहीं पता है, इन दैट केस अगर मेरी बुक लेट्स से इट्स फॉर किड्स एंड इट्स फॉर अ सर्टेन लैंग्वेज, लेट्स से इफ समवन विल बाय माय बुक इफ दे आर सर्चिंग मलयालम बुक फॉर किड्स, तो उस केस में आई वुड रादर प्रेफर कि आप इसको ही फ्रेज मैच में ऐड करके यू रन अ KW ad and you run it for minimum visibility. What is KW ad? हाँ सॉरी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग. ठीक है. सो माय आइडियल वे, डू नॉट गो फॉर ऑटो अगर आपको ऑडियंस पहले से पता है. ठीक है. अगर ऑडियंस में अभी पता है ऑडियंस बट यू डू नॉट नो कि कौन से कीवर्ड लोग सर्च करेंगे, कहाँ से मुझे सेल आएगी, इन दैट केस ऑटो इज अ गुड थिंग टू डू. बट विथ नेगेटिव टारगेटिंग you do not have money to update negative after burning money. You have to be very So you're saying while adding my negative targeting, I can be proactive also and put negative targets जहाँ मुझे पता है कि ये तो for sure नहीं दिखाना है मुझे यहाँ पे ad. बिल्कुल वो मैं day one पे negative में डाल सकता हूँ. बिल्कुल ठीक है, fair enough. ठीक है. नेक्स्ट आई वुड रादर सी मेरे मार्केट में कौन से लोग मेरे से सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग, एंड दैट you can easily get from their ratings and reviews. Okay. ठीक है. And since you are launching a product, I am hoping that you are doing your market research very well. Identify those 5 brands which are similar, selling similar items, but not able to provide what the customer is looking for. And they do also have a higher average price range also. Target them through PT. Target them through sponsored product targeting, sponsored display ads, and try to get visibility from there also. And that will make sure that the starting few hundred clicks you are getting is very targeted. And Amazon algorithm also understands ki the traffic which these SKUs are getting, and with and hoping that conversions bhi आएगा उसके साथ, is relevant to the keywords and the audience we are targeting, and that makes sure ki your BSR improves. That makes sure that you are starting to get a little bit of organic traffic also. But if the starting 100 clicks are irrelevant and are from terms which are not related to your product, it will not convert and you will not get that organic visibility at start. Also, it is very important that whenever you are launching a product, you get some orders in the first 2 to 3 days, because the algorithm in general doesn't likes products which are not getting orders. तो वो फेल होने का रेसिपी है. If you are launching a product and it's not getting orders in the starting few days, तो if you're trying to do that, go a little aggressive on PT, product targeting पे थोड़ा aggressive जा सकते हो आप. Just to make sure that you are visible below buy box, you are visible in list में सबसे पहले, so that clicks आए and chances of order भी बढ़ता रहे. So आप ये बोल रहे हो कि नया प्रोडक्ट मैंने जैसे ही लॉन्च किया है, from the day of launch I should be really aggressive in terms of ads. That's one. And when I say aggressive, I mean
your understanding of this is aggressive in terms of getting that visibility on the relevant placement, right? Our relevant placement आपको define करना है. It could be through auto campaigns with added negative targeting. It could be through relevant keywords. It could be through product targeting as well, right? Now my question is, let's say I have launched, you said example of 5 SKUs. So as a brand, I have launched 5 SKUs. मैं कितना टोटल मंथली बजट लेके चलूं, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस ऐसे प्लान करना है, मुझे अपना कैश फ्लो ऐसे प्लान करना है. आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. आई have entered on Amazon with very small amount of money, with let's say 5 SKUs, very small inventory of these 5 SKUs. क्या मंथली बजट में स्पेंड करूं in terms of नंबर, अगर आप बता सकते हो तो. So my ideally I just said 6 to 10,000 is what I consider. But इसमें बहुत सारे parameters हैं. If your product has high ASP, तो वो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि the clicks you will Let's say I am launching an ASP of 500 rupees. If the product is of 500 rupees, I'll say 6 to 7,000 rupees. Is it like for 5 ASINs monthly? No, for one. For one ASIN. For one ASIN. So which means close to 30-35 हज़ार रुपए मुझे खर्चना है for 5 SKUs if I want to promote. I'll call it कि आप प्रोडक्ट टेस्ट आउट कर रहे हो ऑन Amazon कि वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या नहीं है. मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो बिकता है या नहीं बिकता है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. इसको चेक करने के लिए यू विल नीड सम विजिबिलिटी, सम क्लिक्स, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. ठीक है. इनिशियल ऑर्डर्स विल टेल यू कि एक्सेप्टेंस है मार्केट में. अगर वो 100 क्लिक्स पे नहीं आता है, 150 क्लिक्स पे नहीं आता है, यू विल हैव टू गो डाउन एंड चेक क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या मेरी लिस्टिंग में प्रॉब्लम है या इसकी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में भी. सो आई गो डाउन एंड टेल यू एन एग्जाम्पल. बुक्स का ही एग्जाम्पल दिया था मैंने. आई वॉज इन टॉक्स विद समवन हु इज लॉन्चिंग हु लॉन्च्ड अ बुक वेरी रिसेंटली. ठीक है. आफ्टर लॉन्चिंग महीने में ही इट सोल्ड 75-80 यूनिट्स. Okay. That gave that lady courage कि मैं दूसरी बुक भी लिखूंगी. And the first book was on a topic which was being searched on Amazon. Okay. ठीक है. उसका सर्च वॉल्यूम है. So that made sure कि कैटेगरी में चल रहा है सब कुछ. She launched at a very competitive price, delivery fast, everything. तो वो चल गया. But right now the next book she's looking to launch is not a hot selling doesn't has an hot selling audience. बहुत ज़्यादा सर्च नहीं होता है. अगर बिकेगा भी तो ऑन keywords which will be थोड़ा सा substitute वाला keyword. It will not be a story book. अगर कोई स्टोरी बुक लिख रहा है तो वो स्टोरी बुक खरीदने के लिए आया है. बट if my book is a story book related to history, तो वो चेकआउट करेगा. maybe he will bought, maybe he will not bought. तो in that case, as a consultant, I told her that you should not expect कि सेम ए कॉस्ट पे बिकेगा या सिमिलर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो एक स्टोरी बुक थी डायरेक्ट उस कीवर्ड पे बिकने के लिए. पीपल सॉ इट, प्राइस रेंज अच्छा था, दे बॉट इट. इसमें सिमिलर प्राइस रेंज पे देयर विल बी मोर क्लिक्स बट एक्सेप्टेंस कम होगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स. बच्चों के लिए स्टोरी बुक है. तो व्हेन यू डू मार्केट रिसर्च, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग साल में 1 से 2 बुक ही ऑर्डर करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोर्स फॉर देयर किड्स. मेजॉरिटी 1 से 2 ही करती है. Okay. अब उस 1 से 2 में दे वांट देम टू रीड सर्टेन टाइप ऑफ बुक्स. पंचतंत्र पढ़ानी है मुझे अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ानी है. बट मैं अगर उसमें कोई बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर लाके लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दे विल चेक आउट. बट उसके लिए ऑडियंस बहुत कम है. वो अभी भी चाहते हैं कि पहले मेरा बच्चा अकबर बीरबल पढ़ ले, उसको मजा आता है, टॉम एंड जेरी पढ़ ले, टाइप ऑफ थिंग्स. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मार्केट, यू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट कितना सूट करता है, कितना वॉल्यूम है, एंड बेसिस दैट यू हैव टू डिसाइड योर बजट एंड यू हैव टू डिसाइड योर ए कॉस्ट ऑल्सो. हो सकता है सेम बुक ही लॉन्च कर रहे हैं, एक का ए कॉस्ट कम आएगा, एक का ज्यादा आएगा, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है उसके मार्केट में उतना. एंड ऑल दैट यू हैव टू कैलकुलेट. नहीं, ठीक है, फेयर है ना. आई थिंक दैट इज रियली इंसाइटफुल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है. One tool that I generally recommend to people is brand analytics to find that out कि क्या सेल्स वॉल्यूम है.
since we are talking about new sellers, you have to have Yes. brand registered for it. Yes, correct. Otherwise, you can use some third-party tools for keyword research and see कितना volume है किस keyword का and all that. But then अगर कोई हमें fund कर देगा tool provider तो हम उसका नाम भी ले देंगे. So my again coming back to the budget part of it for a new brand. आपने बोला कि मैं approximately 30,000 रुपए खर्च करूं if I have let's say 4 to 5 SKUs and 30,000 is let's say 1,000 rupees per day budget, right? क्या मैं ये पांचों को सेम डे एडवर्टाइज कर दूं 1,000 रुपए में इक्वली स्प्लिट कर दूं 200 रुपए सब पे या should I focus this for this 1,000 rupees maybe on 1 or 2 SKUs, test it out and then do the switch? What do you suggest? Brand to brand depend करता है. Personally, if you ask me, I'll go one by one. दो SKU को पहले prioritize करूँगा क्योंकि with limited budget, data is very small, but your ability to read that data and take decision has to be very fast. तो if you have launched all 5 at once, there are chances कि you are missing updating any ads due to time constraint. तो I will suggest आप दो करके जाओ. पहले 3 लॉन्च कर लो फिर 2 लॉन्च करो क्योंकि obviously there will be some learnings which you can update in the next set of launches you are doing. All that will help. और ये भी डिपेंड करता है if that all these 5 SKUs are from same category or not. Different category है तो बिल्कुल अलग अलग जाओ क्योंकि your research work will be very broad then. 5 कैटेगरी में रिसर्च करना है मुझे, सबके लिए वो छोटे छोटे टास्क करने हैं, मुझे पढ़ना है कंपटीशन क्या कर रहा है, किसने अपनी प्राइसिंग चेंज की है. ऑन दैट फ्रंट ना एक पॉइंटर और मेरे को प्राइसिंग, सिंस वी टॉक्ड अबाउट प्राइसिंग, योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो डिफाइंस योर सक्सेस इन मार्केट. बहुत बार लोग ना एक ऐसे व्यू पॉइंट से आते हैं कि मैं लॉन्च करूंगा और डे 1 से प्रॉफिट निकालूंगा. Okay. ये नहीं एक्सपेक्टेशन लेके चलना है व्हेन आई से कि 6,000 रुपए का बजट होना चाहिए. यार 6,000 रुपए का बजट इज टू मेक श्योर दैट यू गेट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड यू गेट अ प्रूफ ऑफ स्केल ऑन Amazon. इट इज नॉट टू अर्न मनी. ये 6,000 रुपए पैसा कमाने के लिए नहीं लगा रहे हो, प्रोडक्ट चेक करने के लिए लगा रहे हो कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्या मैं इसका और माल लूं नहीं लूं, क्या मैं इस पे और एक्सपेंस करूं या नहीं करूं, स्केलेबल है कि नहीं, मार्केट एक्सेप्टेंस है कि नहीं. in starting mein if you have to apply some coupons, apply some discounts on product, you should do it. Do not look for profits, look for scalability and orders on Amazon, and also look for how I can make sure that people are reviewing my products, giving you ideal feedback that can help you scale it further. Make sure ki people have a channel, which we talked about past maybe. People have a channel to talk to you, share their feedback to you on your products. And this depends upon product to product. On a category like book, which we talked about, वहाँ पे feedback बहुत लेट से आता है पर अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि obviously that person will need some time to read it. And but since the personality is to read and write, they share feedbacks. ठीक है. इन अ कैटेगरी लाइक होम एंड किचन, प्रोडक्ट यूज हो रहा है, किचन में यूज हो रहा है, ऑर्डर किया है किसी और ने, यूज करने वाला कोई और है, यू मे नॉट सी उतने ज्यादा रेटिंग्स एंड रिव्यूज. हाँ, कुछ खराब करोगे तो फिर वो खराब करोगे तो 100 में 100 खराब रिव्यूज आएंगे. अच्छे में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिव्यूज. हाँ, बट लेकिन अगर खराब रिव्यूज आ रहे हैं ना, दैट इज गोल्ड माइन फॉर अ सेलर, फॉर अ ब्रांड हु अंडरस्टैंड्स कि क्या पढ़ना है और उसको क्या समझना है. अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई खराबी है एंड समवन इज हाईलाइटिंग इट टू मी थ्रू रिव्यूज, थ्रू ईमेल्स, and you have the power to implement those changes. Do not get a setback due cause किसी ने negative review डाल दिया है. It is a learning you have. You can. So you're saying, so बहुत सारे sellers एक और चीज करते हैं. Since you talked about it, मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस पर स्टार्ट में लेट्स से 4-5 पॉजिटिव रिव्यूज आए, फिर 4-5 नेगेटिव भी आ गए. बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई हैव लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट, हाई चांसेस कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, उतना ज़्यादा एफिशिएंट ना हो,
वो कुछ भी हो सकता है, या जो भी मैंने फीचर्स बिल्ड किए हैं उतने ज़्यादा यूज़फुल ना हो. सो जैसे ही नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, या तो सेलर्स वो प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि मैं नई लिस्टिंग लगा दूंगा क्योंकि अब तो ये लिस्टिंग पे रिव्यू खराब हो गए. सो इज दैट अ गुड practice? What do you suggest here for an Amazon brand? What should be the steps that they should take? अगेन डिपेंड्स कि कितनी खराब लिस्टिंग आई है. मैं तो डिस्करेज करूंगा कि डिसकंटिन्यू दैट लिस्टिंग एंड रीलिस्ट कर दो, क्योंकि पूरी जर्नी फिर से स्टार्ट होगी एंड यू नेवर नो कि वो फिर से चलेगा या नहीं चलेगा. मे बी इनिशियली जो बूस्ट मिला था इस सीजन को वो आपको ना मिले, बट आई गिव यू example. I'm working with a brand which is big in home care products. Okay. So they send their products vacuum करके, so that make sure कि वो vacuum packaging करके बेचते हैं. And suddenly they started getting few reviews जहाँ पे लोग people were complaining about कि ये product सही से खुलता नहीं है, सही से use नहीं हो पाता है and all that. Now how active the seller was, that he read that very fastly. तीसरी चौथे रिव्यू में ही उन्होंने पढ़ लिया कि ये आ रहा है, एंड ही न्यू कि वो क्यों आ रहा है. एज एन एजेंसी मुझे नहीं पता था कि ये क्यों आ रहा है, बट व्हेन वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वैक्यूम किया है, एंड लोगों को पता नहीं है कि वैक्यूम खुलने के बाद इट टेक्स 15-20 मिनट्स फॉर द प्रोडक्ट टू गेट इनटू इट्स शेप. अब वो खुलते ही उन्हें दिखता है कि ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो तो बड़ा था, ये तो छोटा है, ये इतना सॉफ्ट भी नहीं है जितना मैंने सोचा था. एंड वही आजकल अटेंशन स्पैन छोटा है, एंड दे स्टार्ट टेलिंग कि नहीं. How did they solve this? So how he solved it with a thank you card. With the product packaging के अंदर ही he mentioned कि product is vacuum packed, and why is it vacuum packed? He told the customer very upfront कि इसलिए किया गया. You have to wait 15-20 minutes for it to gain its shape. If अगर ये आधे घंटे में भी नहीं होता है, 20 minutes में भी नहीं होता है, you can contact me on this number and I will help you directly in how to solve that. And that reduced all those negative points. So again, customer support, after sales service, getting the feedback, making sure acting upon it, tracking the customer behavior as well. Yes. And he actually updated that in his images also. वो pointer डाला उन्होंने that you said and I listened, and these are the changes I have made. You have to, when you receive the package, you have to wait for 30 minutes for it to get its shape back. And I think it's a really smart strategy to communicate your product improvements. I do not see a lot of sellers doing that on Amazon. But I feel like कि मेरे पास 4 negative rating reviews आए हैं और मैंने उन पे action लिया है. That's a really positive point that I've done for my brand and the product that I'm building. And if I communicate that, people will resonate to it. In fact, people will read those negative reviews also, but then they will realize कि ये पुराने negative review थे. Seller is proactive enough कि उसने इस पे action लिया है, product को improve किया है, and this is how they have improved it. And yes, exactly what you said. And just one point to add to it. I work with a lot of sellers, but people who are new to Amazon, जिन्होंने recently brand बनाया है अपना, they understand this very well. They understand how things work and how deep they have to understand the customer's knowledge and how to make sure that जितना उन्हें पता है प्रोडक्ट के बारे में वो communicate कर रहे हैं बायर को भी. That is how you build trust. But brands which have been made in 16-17 जब Amazon India आया था, वो अभी भी इस practices में नहीं जा पाते हैं. उन्हें लगता है मैंने तो अच्छा प्रोडक्ट भेजा ही है, वो क्यों गलत बोल रहा है, मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट ही है, मैं तो मैं शुरू से बेच रहा हूँ, अब इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है. यार Seller bias मेरे हिसाब से, I'll call it seller bias because वो प्रोडक्ट बहुत दिल से बनाया है मैंने, बड़े दिल से सोर्स किया है, बड़े रिसोर्सेज एफर्ट पैसा लगा के उसको मैंने ऑपरेशनलाइज किया है. आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है. वो होता है ना कि अपना बच्चा बुरा नहीं लगता है किसी को. सो थोड़ा सा एक funny thing is कि you just said source किया है प्रोडक्ट, you're not manufacturing it, you're sourcing it. हो सकता है जिसने मैन्युफैक्चर किया उसके ही इस बैच में प्रॉब्लम था. माइट भी नहीं, बट ये मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी होता है. बड़े चाव से मैंने मैन्युफैक्चर किया है उसको, उसमें भी ये एक सेलर बायस क्रिएट हो जाता है. और वो जो फीडबैक लूप है लोग खत्म कर देते हैं.
And the day you finish that loop, I mean, your product will start deteriorating because now you're not acting upon it. Now you're not delivering a newer value every quarter, or let's say every year on year for that product. और Amazon पे देखा गया है कि जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम उनको प्रमोट करती है, वो प्रूवन है, एस्टैब्लिश्ड है, अच्छे खासे रेटिंग रिव्यूज हैं, कस्टमर फीडबैक है. और शेल्फ लाइफ बढ़ाने का वन ऑफ द वे इज दिस ओनली, टू एक्ट अपॉन कस्टमर फीडबैक वेरी वेरी क्विक एंड कम्युनिकेट दैट वी हैव एक्टेड अपॉन इट. और उनके साथ एक और प्रॉब्लम भी है ना. सो एनीवन हु हैज लेट्स से 50 रिव्यूज, उसके 2 से 3 खराब होंगे ना, 1 स्टार आएंगे, he or she will notice that, will read it. एक्ट करता है नहीं करता है, that depends upon कैसा what he has the image of his brand in his head. But if I have 6,000 reviews, मेरे को 2-4 खराब भी आए ना, मुझे पता नहीं लगता है, unless I'm going one by one, most recent लगा के मैं चेक कर रहा हूँ. वो तब पता लगता है जब अच्छे खासे 20-25 खराब आ चुके होते हैं. और एल्गोरिथम तब तक, और खासकर एल्गोरिथम नेगेटिव रिव्यूज को से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कम कर देता है. Not data backed, but I have seen it for more. I've also seen that. I've also seen that in my experience. अगर recent negative rating reviews आते हैं, then your organic visibility, your sessions get dropped. I can prove it with data also. If I try to fetch it out for some brands, but this is coming out as an experience, so yeah, I agree to it. और since अगर लगातार नेगेटिव फीडबैक आया है तो रिटर्न्स भी आएगा, एंड दैट मेक श्योर कि वो 7 दिन के लिए एसिन ब्लॉक हो जाता है. 7 दिन का एसिन ब्लॉक इज लाइक 7 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहना. करेक्ट. पूरी दुनिया आगे जा रही थी, मैं वहीं खड़ा था. नाउ इसके साथ एक और लॉजिक है कि पूरी दुनिया जब आगे जा रही थी तो वो 50 की स्पीड में जा रही थी और मैं 0 पे खड़ा था. अब मुझे 50 की स्पीड लेने में भी टाइम लगेगा और उनके पास जाने में भी टाइम लगेगा. तो कीप ऑन चेकिंग, एज जैसा when sellers reach out to me कि optimization का क्या timeline है, I also reach out to them कि how regularly you're reading your reviews or not. ऐसा तो नहीं है बस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है मैंने, वो चल गया है और बस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ चुका है और मैं अब चेक ही नहीं करता हूँ. 2 साल हो गया, मैंने रिव्यूज पढ़े ही नहीं है. You have to keep reading, is what. एक point last, so we talked about new brands. We had to talk about middle wala brand also. Yeah, I'm coming back to it, but there's just one point which I wanted to cover. So I'm काफी deep into the conversation चले गए, bringing it back. New brand, 5 ASINs, 5 SKUs, 30,000 a month, 1,000 rupees daily. You said 1-2 products पे try करना is better than going behind all 5 in one shot, क्योंकि आपके पास 1,000 रुपये daily, वो split across हो जाएगा, enough data generate नहीं करके देगा. Correct? Now my question is, let's say I have decided 1,000 rupees, let's say 1 ASIN, to keep it simple. ये 1,000 रुपये एक ASIN पे मुझे कहाँ खर्च करने चाहिए, ये और एक्सप्लेन कर दो. पर्सनली अगर मेरा सो यहाँ पे एक शेमलेस प्लग इन, इफ जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस इज बेसिस माई एक्सपीरियंस एंड बेसिस द ब्रांड्स आई हैव रिसेंटली वर्कड अपॉन. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ personalized view on how you should go ahead, you can get in touch with us for a audit. Shazib being a sales guy. But in general, if I talk, अगर मेरे पास 1,000 रुपये है डेली का and I have to spend it on ads, I will try to do more and more PT. Let's say मेरा 500 रुपये का product targeting. Whenever I say PT, I'm sorry, it is product targeting. 2 types of PT which I prefer, sponsored display and sponsored product. I'm taking an example, मेरा 500 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा, मैं अंडर 4 स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स को ढूंढूंगा Amazon पे, which are either 500 के रेंज में या either in 700 का रेंज, मतलब 20% above my price और in the similar price. 5 प्रोडक्ट ढूंढने हैं मुझे जिनके 4 स्टार से नीचे रेटिंग्स रिव्यूज हैं, उनको टारगेट करना है. एंड पीपल हु हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आल्सो, क्योंकि आई एम टेकिंग इन कंसिडरेशन कि कहीं ना कहीं से ट्रैफिक जनरेट करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं. नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट. हाँ, दैट यू हैव टू बी स्मार्टर देन देम, क्योंकि वो अपना अगर ब्रांड डिफेंस नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू बी देयर. वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला रहा है, हो सकता है ब्रांड डिफेंस करना चाहिए नए प्रोडक्ट पे अपने. बिल्कुल करना चाहिए.
That was one point. How do I do that? थोड़ा brand defense को भी explain कर दो. So अभी यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो मैं सेम कैटेगरी में कुछ मेरा प्रोडक्ट पहले से है जो चल रहा था, मैंने अपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर मैं एक कैटेगरी में बिल्कुल ही नया आया हूँ विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स. अगर मैं बिल्कुल ही नया आया हूँ, आई शुड मेक श्योर कि मैं अपनी एसिन पे अपना ही प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ. एंड एज अ डेटा पॉइंट Amazon says one person sees 6 to 7 products before buying one. Correct. एंड थोड़ा सा स्क्यूड डेटा भी है क्योंकि आईफोन तो बंदा एक बार में देख के ही खरीद रहा है. So that number goes up to 10, 11, 12 in case of fashion items, in case of products which are women centric and all. अगर 10-12 प्रोडक्ट कोई चेकआउट कर रहा है तो why not make sure कि वो 2-3 मेरा भी देखे. And if you have a similar product in your same category, you have let's say 50-100 reviews, and you have a new product launched in the same category, make sure that you are visible on the ASIN. That builds trust कि मैंने एक ABC ब्रांड का एक प्रोडक्ट देखा है, मैंने देखा है उसके पास 50 रिव्यू, पर जो नए वाले पे उस पर रिव्यू नहीं है, बट इन माइंड आई एम श्योर कि हाँ ये पुराना ब्रांड है, दे हैव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये अच्छा प्रोडक्ट भेजेंगे, कोई घटिया नहीं आने वाला है, ये नया डिजाइन है. तो दैट मेक श्योर कि वो एक लिंक बन जाता है. इसलिए में हम बोलते हैं ना कि create links connect each links with each other, juice flow करने दो. तो brand defense is very important if you are trying to capture your audience, making sure that audience also knows that you have multiple products in the same category, multiple designs and all. ठीक है. So brand defense is important. और अगर कोई brand defense नहीं कर रहा, I can leverage that also by targeting the new launches and all that stuff. Really smart idea. So this 1,000 rupee, how should I split between PT, keyword, or how should I go about it? How should a new brand navigate? I'll spend 50% of it on sponsored product PT targeting. 500 रुपए तो मैं डेली स्पेंड करने की कोशिश करूंगा. I'll spend similarly 300 rupees on SDPT, sponsored display product targeting, and if possible I'll spend 200 rupees on a video ad, क्योंकि वो मुझे फर्स्ट पेज. So ये पूरा 1,000 मैं PT पे खर्च कर दूं. 800 रुपए PT पे दे रहा हूँ, 200 रुपए मैं वीडियोस पे दे रहा हूँ, कीवर्ड पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट क्योंकि मेरे पास 1,000 रुपए ही है. ओके ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर वीडियो के थ्रू, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं फर्स्ट पेज पे सस्ती प्लेसमेंट ले लूँ. You said video ad, but on keywords only, right? On keywords only. ठीक है, makes sense. And what kind of keyword should I pick? How many keywords should I pick for this one product? Maximum 4, ideally 2. 2 keywords. ठीक है. And how this strategy grows, let's say ये 1,000 रुपए के अगेंस्ट माई ब्रेक इवन इज, अगर मैं 4,000 की सेल करता हूँ तो मैं ब्रेक इवन करता हूँ. लेट्स अज्यूम दैट. बट अभी आई अंडरस्टैंड ये 1,000 रुपए से मुझे मार्केट एक्सेप्टेंस टेस्ट करना है एंड ऑल दैट. इसको मैं स्केल कैसे करूँ? अब ये 1,000 रुपए खर्च हो रहा है. आइडियली मेरा गोल होना चाहिए कि मैं इस 1,000 से एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लिक्स डेली जनरेट करूँ. क्लिक्स जनरेट होंगे तो सेल आने के चांसेस हैं. अगर मैं डे 1 से ही ना गलत गोल लेके चलूंगा कि मैं 1,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे तो 4,000 रुपये की सेल चाहिए ही चाहिए, नहीं, सेल आएगी नहीं आएगी वो तो अभी सेकेंडरी चॉइस. ये 1,000 से आई एम नॉट लुकिंग एट 4,000 की सेल. ऑल आई एम सेइंग इज 4,000 की सेल आएगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि इसके नीचे तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ कॉन्टेक्स्ट. आर यू आस्किंग कि रुकना कहाँ पे? नहीं, वो अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से मेरे को 4,000 की सेल नहीं आई बट 2,000 की सेल आई. आई स्टिल फील कि मुझे स्केल करना चाहिए, मार्केट एक्सेप्टेंस है, क्योंकि 1,000 रुपये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं मेरे, पूरा दिन चलते भी नहीं है. और इन्हीं 2 कीवर्ड से या यही 5, 7, 10 प्रोडक्ट्स जो मैं टारगेट कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट टारगेटिंग, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. ठीक है, मेरा प्रोडक्ट लिक्विडेट होना शुरू हो गया है. आई एम गेटिंग 2-3 ऑर्डर्स एवरी डे. नाउ आई वांट दिस टू स्केल टू, I do not want these 3 orders to be profitable. That's not the goal right now. And ideally that should not be the goal for a new brand. I understand that. But then मुझे ये 3 को 30 लेके जाना है, फिर 300 लेके जाना है. That's the goal. Maybe then I can look at कि how do I optimize my ads to be profitable also. तो अभी जैसे मैंने 1,000 रुपये स्पेंड किया था तो मैंने 3 स्ट्रैटेजी ऊपर लगाई थी. पहला था मैं अपने से 20% हायर 4 स्टार रेटेड, बिलो 4 स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स चूज कर रहा था. एक मैं चूज कर रहा था नए प्रोडक्ट्स कौन लॉन्च कर रहा है उनको टारगेट कर रहा था. और तीसरा मैं कुछ सर्टेन कीवर्ड्स पे वीडियो एड चला रहा था. इन 3 में से कहीं ना कहीं आपको एक क्लिक दिख जाएगा कि इस पे क्लिक आने से मुझे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट साइन टू
स्केल. लेट्स से फर्स्ट जो आइडिया था मेरा कि मेरे 20% हायर इन बैड रेटेड रिव्यूज पे मेरे को ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, दैट इज योर साइन टू गो फॉर कैटेगरी टारगेटिंग एड्स. मैं SPCT पे एड्स पे स्पेंड करूंगा विथ सिमिलर SPCT स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी टारगेट. कि लेट्स से आई टारगेटेड बुक्स ऑन अ सर्टेन लैंग्वेज, प्राइस रेंज इतना ज़्यादा होना चाहिए, रेटिंग्स रिव्यूज इतने होने चाहिए, एंड आई एम टारगेटिंग देम. Again, if I'm spending money, you have to keep updating your negatives based upon, क्योंकि ये कैटेगरी टारगेट कर रहे हो सकता है गलत जगह भी ऐड दिखने लगे. You have to update that. तो एक पहला हिंट वहां से आपको मिल सकता है. लेट्स से वीडियोस आर वर्किंग गुड फॉर यू ऑन, तो वहां से दो हिंट मिल सकता है. या तो आप वीडियो को मल्टीप्लाई कर दो और भी प्रोडक्ट्स पे स्केल करो, या तो वो कीवर्ड को आप SPKW स्पॉन्सर प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग में चला सकते हो आप. कि मैं इस कीवर्ड पे अभी वीडियो पे तो दिख रहा था, मैं टॉप ऑफ सर्च और बाकी प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई नहीं कर रहा था. अब मैं उसके लिए भी ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे हिंट मिल रहा है. आई हैव गॉट 5, 7, 8 ऑर्डर्स फ्रॉम इट नाउ. वहाँ से स्केल कर सकता हूँ. दूसरा, यू गो इन योर सर्च टर्म रिपोर्ट्स ऑफ ऑल दीज एड्स व्हिच यू हैव प्लेस्ड. SPPT में भी अब एक्सपैंडेड का ऑप्शन होता है. सो वहाँ से वो कई सारे सिमिलर पे भी दिखा रहा होता है. एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि मैं एक एसिन को टारगेट कर रहा हूँ तो उससे सिमिलर एसिन्स पे भी वो मेरा ऐड दिखा देगा इफ आई एक्सेप्टेड दैट एक्सपेंडेड वाला ऑप्शन. तो अगर वो ऐसा किया है मैंने, एंड यू कैन डू दैट इफ यू हैव 500 रुपीज का बजट, तो सॉरी, यू कैन गो इनटू सर्च टर्म रिपोर्ट्स, यू कैन क्लिक टेक आउट दैट डेटा, सी फॉर कहाँ पे मुझे हिंट दे रहा है डेटा टू गो अहेड. एंड वहां से एक डेटा और मिल सकता है कि मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा. कुछ कीवर्ड्स पे अगर मुझे कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, मेरे लिए रिलेवेंट है वो, व्हाई एम आई नॉट कन्वर्टिंग ऑन दोज इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, एंड यू शुड गेट दैट आंसर फ्रॉम योर लिस्टिंग क्वालिटी एंड A+ कंटेंट एंड अदर थिंग्स. वहाँ पे आप ऐड स्विच करके आपको वापस वहाँ जाना चाहिए. क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. अगर सॉल्व है तो सॉल्व करो, फिर वापस आओ, फिर से गो इनटू सेम स्ट्रैटेजी और डिफरेंट वन. नहीं कर सकते हो तो फिर क्रैक नहीं हुआ है, एंड यू शुड सेव टाइम एंड सेव मनी. सो स्केलिंग की यू सेड देयर आर 2-3 वेज. वन इज कि मैं ऐड सेम कीवर्ड पे ऐड टाइप बढ़ा लूँ. मैं पहले वीडियो चला रहा था, अब मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड भी चला रहा हूँ फॉर टॉप ऑफ द सर्च फॉर दैट कीवर्ड, और लेट्स से सम अदर प्लेसमेंट्स बट फॉर द सेम कीवर्ड. अदर वे कुड बी मैं नंबर ऑफ टारगेटिंग्स बढ़ा लूँ. लेट्स से आई फाउंड आउट अ पैटर्न कि ये स्पेसिफिक बेनिफिट के अगेंस्ट ये 5 कीवर्ड अच्छे चल रहे थे, तो और 5 कीवर्ड मैं निकाल लूँ. इस तरीके से भी मैं स्केल कर सकता हूँ. देन थर्ड वे कुड बी के व्हाट वाज द थर्ड वे? There was one more thing that you said. कैटेगरी टारगेटिंग की बात. हाँ, कि मैं टारगेटिंग को और थोड़ा ब्रॉड कर सकता हूँ इन द सेम डायरेक्शन वट एवर इज वर्किंग फॉर मी. ठीक है, फेयर इनफ. आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बट देन माई क्वेश्चन इज, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी आपने बताई फॉर अ न्यू ब्रांड लॉन्चिंग अ न्यू set of products, then starting with a limited budget and all that, how would this strategy change for a brand who is already established on Amazon? Let's say 15 lakh, 20 lakh, 25 lakh की सेल कर रहा है वो monthly. They have some kind of budget for their ad spends and all that. क्या ये सेम स्ट्रैटेजी इनको भी फॉलो करनी चाहिए या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत है इसमें? So I'll say it is easier for as you go above from the baseline. एक तो आपका बजट बढ़ जाता है. दूसरा, if you are launching in the same category, you have the leverage to use your old ASINs very strategically. या तो उसमें आप वेरिएशन ऐड कर लो, या उस पे PT टारगेट फिर से कर लो जो हमने अपनी ASIN पे. डिफेंस भी हो गया, एंड साथ साथ रिलेवेंट ट्रैफिक भी ड्राइव कर रहे हो. बहुत ज़्यादा बार ना, आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि बहुत ज़्यादा बार लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं उस पर स्टार्टिंग में बहुत इररिलेवेंट ट्रैफिक आने देते हैं. वो बहुत ज़्यादा होता है. मैं ऑटो चला तो दिया है सर अभी 200 रुपये, आप ही चला दो 200 रुपये पे. हाँ, सही कह रहे हो. ये एक माइंडसेट बहुत है कि ऑटो कैंपेन चला देते हैं, या तो अभी कीवर्ड फेच कर रही है, बट वो रेसिपी फॉर डिजास्टर भी है. कैसे? एक्सप्लेन. क्योंकि स्टार्टिंग में इररिलेवेंट आया ट्रैफिक, एल्गोरिथम ने उसको समझा कि भाई प्रोडक्ट बेकार है, इसको दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है. और वहीं अगर स्टार्टिंग में the 100 clicks are very relevant
and you get 2-3 orders. Now the algorithm has knowledge कि ये कहाँ से traffic मिलता है तो ये convert करता है, and the product is also good. Order भी आ रहा है, conversion rate भी अच्छा है, product लोग रख भी रहे हैं, review भी ठीक आ रहा है. That is your path to success. अगर starting में ही या तो मैं लस्तक हो गया हूँ, मैं ये वहीं गोल गोल घूम रहा हूँ. So again, giving you an example, I was working with a furniture brand recently. उनका auto ad में ही ना, I just had a intuition कि furnitures are, अगर मैं टेबल खरीदूंगा तो मैं चेयर खरीदूंगा. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पे मैंने बिड ज्यादा की, बाकी को बंद कर दिया. मैंने एक ऑटो एड चलाया जिसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एड, सॉरी सब्स्टिट्यूट सॉरी, नॉट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री ना. ओके, टेबल लिया है तो चेयर लेगा, ठीक है. थिंग्स लाइक दैट. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री. तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पे बिड ज्यादा करके एड चलाई ऑटो की, एंड इट फेच्ड मी वेरी गुड टारगेट्स कि कहाँ पे लोग इसके साथ मेरा प्रोडक्ट भी लेना चाह रहे हैं, एंड मैं वहाँ पे एड में दिखा रहा हूँ तो मेरा बिक रहा है. रीसेंट चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑल्सो कि अगर आप टेबल देखोगे ना, पहले होता था ना, पीपल बाई दिस 3 टुगेदर, बाई दिस 2 फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाला. हाँ, वो भी अब एड प्लेसमेंट हो गई है, स्पॉन्सर्ड हो गया. हाँ, कई कैटेगरीज में हो गई है, फर्नीचर में हो गया है. ओके, इंटरेस्टिंग. इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स उतना अच्छा काम किया नहीं है मेरे लिए. कभी स्पेंड ही नहीं कर पाया हूँ मैं ऑटोमेटिक एड्स में. कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है उसमें. ये फर्नीचर में ही चला है मेरे लिए. मेरे को बस एक हिंट था कि whenever someone buys, मैंने खुद जब सोफा लिया तो मैंने उसके लिए टेबल ढूंढा कि मुझे टेबल भी चाहिए. तो बस वो पर्सनल एक वो था, इंट्यूशन थी कि अगर मैं ऐसा करके देखता हूँ चलता ही नहीं चलता है, तो वहां से वो चला, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लिक्स रिलेवेंट है, सामने वाला बंदा इन मार्केट है फॉर बाइंग अ टेबल, सो इज इन मार्केट टू बाई अ चेयर आल्सो. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से कि मेरे खुद के बाइंग बिहेवियर, लेट्स से पीपल नियर मी, जो उनका बाइंग बिहेवियर अगर मैं वो भी नोटिस करूँ अच्छे से, आई कैन बिल्ड स्ट्रैटेजीज आउट ऑफ इट. जैसे आपने बोला कि मैंने तो सोफा ऑर्डर किया था और टेबल भी खरीदा था. मोस्ट पीपल विल नीड इट. दैट कैन बिकम अ स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली इट सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं है कि चलेगा ही चलेगा जस्ट बिकॉज मैंने ये किया है. हाँ, बट देन यू कैन रियली बिल्ड गुड स्ट्रैटेजीज विच आर स्पेसिफिक टू योर कैटेगरी इफ यू अंडरस्टैंड इन डीप कि मेरी कैटेगरी में बाइंग बिहेवियर है क्या, लोग कैसे कैसे परचेज करते हैं, बाइंग जर्नी होती क्या है, राइट? सो या, आई मीन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. At the end of the day, we all forget that we are also humans. मेरा ब्रांड है ये, तो मैं ये खरीद रहा हूँ. क्या मैं नॉर्मल कंज्यूमर होता तो मैं अपना ब्रांड खरीदता कि नहीं खरीदता, विल आंसर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस. मैं एडसिफाई का ओनर हूँ, इसलिए मैं एडसिफाई को प्रेफर करता हूँ. बट अगर मैं एडसिफाई का ओनर नहीं होता तो मैं क्या लेता, क्या मेरा एक्सपीरियंस स्मूथ होता. दैट इज हाउ आई मेक श्योर कि मेरी टीम उस चीज़ों को सॉल्व कर रही है. कि इफ आई वुड हैव बीन अ कंज्यूमर, मेरी टीम मेरे साथ कैसे बिहेव करती, मुझे कैसे रिपोर्ट शेयर करती है, एंड ऑल दैट. दैट इज हाउ आई सॉल्व माई कंपनी. दैट इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट. कि अगर इन मार्केट में हूँ, लेट्स से आई एम अ लैपटॉप ब्रांड, इफ आई एम इन मार्केट टू बाई अ लैपटॉप एंड आई हैव अ 60,000 रुपीज बजट, क्या मैं उस 60,000 रुपीज बजट में जो उसको बेस्ट चीज मिल रही है मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ? कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे दिखना चाहिए, एंड आई डिजर्व टू बी इन द रेस. अगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं उस रेस में दौड़ने की गलत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक और हाई जाएगा, देयर विल बी चांसेस ऑफ फेलियर. मेक सेंस. ठीक है. सो छोटे ब्रांड के लिए 30,000 आई अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी फुली. बड़े ब्रांड के लिए क्या मुझे बजट भी बड़ा कर देना चाहिए नए प्रोडक्ट्स के लिए? I would like you to talk about it. On the larger brand, and I'll add after that. मेरे हिसाब से if a new brand is entering 30,000 budget, ठीक है, I agree to the strategy. I completely agree to the strategy. But then if you are a bigger brand, ideal way would be कि आपका जो total spends है उसमें से एक चंक निकाल के रखो for the new product launches, right? Every brand will launch certain new products every quarter. And that's how you survive in the market. That's how you get incremental visibility. That's how you drive incremental sales, right? हाँ, existing products भी scale हो सकते हैं. But then new products से भी scale करता है, हर कोई scale करता है. So let's say if I am a 30, 35, 40 lakh का brand and I'm let's say spending 4, 5 lakh, 6 lakh rupees a month on advertising. इस 6 लाख रुपए में से 20 to 30% of the budget, depending upon how many new products you are launching and depending upon how aggressively you want to launch them. This
budget should be set aside only for the new products. मेरे हिसाब से तो ये भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द न्यू ब्रांड्स के पोर्टफोलियो अलग अलग कर लो, नए प्रोडक्ट्स का अलग, पुराने प्रोडक्ट्स का अलग, राइट? Brands which are really scaled up now, one common thing that I see with them is they track their spends category wise, be it through portfolios, be it through customer reports and all that. But point ये है कि नए प्रोडक्ट्स पे गोल अलग है, पुराने प्रोडक्ट्स पे गोल अलग है. नए प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी अलग आएगी, पुराने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी अलग होगी, आपके एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं. तो वाई नॉट रिपोर्ट देम सेपरेटली? देन ये जो 20 से 30% का जो बजट है, दिस शुड बी स्प्लिट अक्रॉस योर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस and you're free to decide on how much you want to spend on PT and how much you want to spend on keyword. But in my opinion, what I feel is if you are already a scaled up brand and you feel like if you have really good edge over the top competitors in the category, then only I would suggest you spend 50, 60, 70% of the budget on new product for keyword targeting. If you feel like कि नहीं अभी product development का scope है, ये इतना बेशक Amazon पे नया product है, but अभी इन जनरल भी प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने एकदम एनहांस्ड नहीं करी है, वर्जनिंग होगी अभी, इसकी इंप्रूवमेंट आएगा, राइट? सो मे बी इन दैट केस आई विल स्टिल फॉलो द स्ट्रैटेजी दैट यू सजेस्टेड फॉर द न्यू ब्रांड्स कि पहले पीटी कर लो, मे बी ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग इन ट्रैफिक, मे बी ऑन द प्रोडक्ट्स वो आर नॉट दैट ग्रेटली रिव्यूड रेटेड बाय द कस्टमर्स, क्योंकि उन पर ट्रैफिक तो आ रहा है बट हाई चांस कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे, राइट? सो मैं फिर इस स्ट्रैटेजी पे जाऊँगा. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सो कुछ लॉन्च करता है नया, राइट? मे बी अ न्यू काइंड ऑफ स्लीपर. रिलैक्सो पूरी R&D टीम है उसके पास, वो अच्छा प्रोडक्ट ही लॉन्च करेंगे अगर मार्केट में उन्होंने उतारा है तो, राइट? दे वुड वांट टू कम्पीट हेड ऑन. अब रिलैक्सो इज नॉट अ 30-40 lakhs का ब्रांड, इज मच बिगर ब्रांड. बट देन अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है अबाउट योर प्रोडक्ट, देन यू कैन गो हेड फॉर द टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट्स एंड कम्पीट अगेंस्ट द टॉप प्लेयर्स. बी इट you know, if you are burning money in the beginning, let it be, right? Because you can afford that now. You are a big brand now. You have those deep pockets. Leverage that. Okay. If you still go slow, then what is the point of being a big brand and still, taking 6, 7 months, 8 months to build a new product? Also, when we say big brand ना, सिर्फ सेल्स से बिग ब्रांड डिसाइड नहीं होता. ऐसा नहीं होता है कि कोई 70 लाख 80 लाख की सेल कर रहा है तो you ideally I'm taking in consideration that you have a bigger team to do market research, a bigger team to a better team to handle your ads. अब जब हम when we're talking about smaller and medium brands, I was talking about how you can do it. But if you're a big brand, I am considering that you have trained people for all these things. That is why when we talk about budgets, वो multiply होता है उनके लिए. You will not spending 1,000 rupees for one product each day. You should be doing it for a scale of 5 to 6,000 rupees daily on new products, क्योंकि आपका लॉन्च भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, मार्केट रिसर्च भी ज़्यादा रिफाइंड है. You have learnings from the past also which has been implemented in launching that product, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा चलता नहीं है पहले, मैंने पहले ही सारी चीज़ें से लर्निंग ली हुई है. All that. Understood. Yeah, that makes total sense. I think when I say bigger brand, what I really mean is, again, my customer experience बोल रहा हूँ. You talked about it a lot today, right? If as a brand you have invested a lot of resources, time and money in building that customer experience, then only I am considering you as a big brand, right? You will be surprised to know, I mean, audience will be surprised to know how many brands are doing more than NCR a month on Amazon, और लोगों को नाम भी नहीं पता है उनके ब्रांड के, राइट? लोगों ने परचेज किया हुआ है तो भी लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने इससे परचेज किया है, राइट? सो sales is not the metric that I'm talking about. But then my intention when I say a big brand, or let's say my meaning when I say big brand, is कि आपने अच्छा खासा investment डाल दिया है in your R&D, in your product development, in your operations, in your customer experience, right? In general. ठीक है. So I want to add an example here. Ads में मामले में भी how a big brand has a better chance of scaling. So I was working with a brand who is in bathroom mops. So he launched a new version of it, a new listing altogether. How easy it was कि मैं लास्ट वाले कैंप जो उसके प्रोडक्ट थे उसके कैंपेन से मैंने नेगेटिव उठाया और उसमें डाल दिया. Is that easy? I have that data कि मुझे इन कीवर्ड्स में तो दिखना ही नहीं है. तो स्टार्टिंग से ही उसके एड्स में, बिकॉज इट इज नॉट इलेक्ट्रिक मॉप,
अब उस वाले एसिम पे जब मैंने ऐड लगाई थी तो मुझे वो 20 क्लिक आने के बाद पता लगा कि यार इलेक्ट्रिक से भी मुझे कीवर्ड लोग क्लिक कर रहे हैं। तो वो मैंने डे वन पे इम्प्लीमेंट कर दिया ना। जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर एज एन एड्स पार्टनर मैं ये कर रहा हूँ तो यू एंड योर टीम ऑन दी रिसर्च फ्रंट should have that past ka data and learn and implement from day one. Do you suggest every seller should save their bulk operations report, customer system report every month? For sure. I think last 60 days ka data it shows. For sure, you should have your bulk reports downloaded every week. Also, whenever you are doing a major change in your strategy, पहले डाउनलोड करके रख लो क्योंकि अगर वो फटा तो यू हैव अ चांस टू roll it back in a click. वरना ट्रैकिंग चेंजेस विल टेक डेज एंड डेज में तब तक वो बहुत लॉस हो चुका होगा, हार्म हो चुका होगा बिजनेस को. Makes sense. So weekly is what I suggest. Have it downloaded and save it. Yeah, I think we spend good amount of time on Yes. discussing different phases of a brand and how they can scale it up, different type of ad strategies also. Anything that you want to add Yes. before we wrap this up? The first episode which we did, it got a good response from the brands and sellers we are in touch with. So I asked them to ask a few questions. And I promised them that Himanshu and I will be answering those questions here. So I have a couple of them with me. The first question was someone highlighted me that a product can have multiple nodes. Browse nodes. And they highlighted that their competition is doing it and asked how do I do it. I told him how to do that. And the next question I had from him was, is it good or bad before implementing it? I would like you to answer on that. And again, I do not have data for this, but again, coming from the experience that I've had working with certain brands, I think it's a good thing if you are present in different nodes. So, for example, let's say you are selling Diwali ki lighting, right? Lighting के multiple categories हो सकते हैं, which are relevant for you, right? I'm not saying irrelevant category में जाके list कर दो खुद को. I think you can add maximum of 3 browse nodes. You can correct me if I'm wrong. I'll check the data. I'll do the fact check. But then अगर आप relevant हो एक से ज़्यादा category में, then adding browse node makes sense. I'll tell you why also, the logic behind it. So your search term to product relevancy is kind of defined by which browse node you are in. आप अगर let's say टेबल की लिस्टिंग कर रहे हो तो आप चेयर वाले ब्राउज नोड में लिस्ट कर दोगे तो कोई विजिबिलिटी नहीं आएगी इसको. टेबल वाले कीवर्ड पे भी नहीं आएगी, चेयर वाले कीवर्ड पे भी नहीं आएगी, राइट? बट देन इफ यू आर लिस्टिंग योर प्रोडक्ट इन द राइट ब्राउज नोड तभी आपको एक राइट विजिबिलिटी मिलती है. नाउ इफ इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ब्राउज नोड एंड यू आर एडिंग योरसेल्फ इन मोर देन वन रेलेवेंट ब्राउज नोड्स तो आपको चांसेस हैं कि ज़्यादा विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली भी और एड्स के थ्रू भी मिलना आसान है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी, आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट दैट सम टाइम बैक, कि एक बेबी गिफ्टिंग प्रोडक्ट था, वो गिफ्टिंग वाले ब्राउज नोड में भी है और जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं उस गिफ्ट में जो सेट है वो गिफ्ट सेट वो वाले कैटेगरीज में भी है. I guess baby towels था, I don't remember exactly, but then whatever the categories they were in both of them, right? So you will get the juice from both of the browse nodes organically as well as through ads. अब इसमें एक क्वेश्चन ये और बनता है कि छोटी कैटेगरी में लोग लिस्ट कर लेते हैं अपने आप को जिस कैटेगरी का इस ब्राउज नोड का साइज छोटा है जहाँ कंपटीशन कम है, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि बेस्ट सेलर आ जाएगा मेरे पास. माई सिंपल क्वेश्चन टू देम इज, बेस्ट सेलर का करोगे क्या अगर यूनिट्स नहीं निकल रहे तो? इफ यू आर जस्ट सेलिंग 50 यूनिट्स अ मंथ और बेस्ट सेलर का टैग है, दैट वुड नॉट पुट एनी मनी इन माई पॉकेट. You would want to sell 500, 1000, 5000 units a month. बोलते हैं ना कि छोटे तालाब में बड़ी मछली रहना या बड़े तालाब में छोटी मछली रहना. हाँ, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि छोटे तालाब में बड़ी मछली बन के आप करोगे क्या, बिकॉज यू हैव नो रूम टू ग्रो देयर, राइट? सो पॉइंट इज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेस्ट सेलर टैग कौन सी कैटेगरी में जल्दी आता है, कहाँ लेट आता है एंड ऑल दैट, किस में कम कंपटीशन है किस में ज़्यादा कंपटीशन है. फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप सही ब्राउज नोड में हो, वो रेलिवेंट है, उसकी वजह से आप क्या एड्स और ऑर्गेनिकली बेटर विजिबिलिटी ड्राइव कर पा रहे हो, कम CPCs पे विजिबिलिटी जनरेट कर पा रहे हो. इफ़ इट इज़ लीडिंग टू दैट
I think you should go for it. And I feel like in my experience, it leads to better visibility. So I hope that answers. It does. I just have one question here. Will you like ask someone कि दो कर ही दो, दो नोट्स में डाल दो, हाँ। या फिर रेलेवेंट है तभी डाल? रेलिवेंट है तभी डालो, ऐसा नहीं कि हाँ, आई जस्ट वांटेड यू टू क्लियर दैट. अब ये भी समझो ना, आपने मछली का एग्जांपल दिया था, मैं उसी को आगे फर्दर एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ. दो तालाब है, दोनों तालाब का हैबिटेट अलग है, टेम्परेचर अलग है पानी का, अंदर जो फूड मिल रहा है ऑर्गेनिकली आपको वो अलग है. आप इस तालाब की मछली हो और आप दूसरे में चले गए हो, वहां जाके मर जाओगे ना. व्हाट इज द पॉइंट वहां पे घुसने का जब आपके लिए वो हैबिटेट ही नहीं है? तो अगर रेलेवेंसी नहीं है उस ब्राउज नोड की, तो उसमें घुस के क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा आपको. इनफैक्ट उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. एल्गोरिदम को लगेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में, एल्गोरिदम कंफ्यूज कर दिया अब आपने, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है अच्छा है तो अब जाके करना ही है. इफ यू फाइंड मोर देन वन कैटेगरी विच इज रेलिवेंट फॉर यू, देन ओनली यू गो अहेड एंड लिस्ट योरसेल्फ इन दैट. हाँ, स्टडी इट. ऐसा नहीं कि बस क्योंकि हिमांशु ने बोला और क्योंकि मेरा कंपटीशन कर रहा है. हाँ. कंपटीशन कर रहा है, हो सकता है उसके लिए काम भी ना कर रहा हो सकता है उसका नुकसान हुआ हो उससे. सो ब्लाइंडली जाके कॉपी नहीं करना है. Cool. Last question which I will take is retargeting ads. I wanted to ask what should be the strategy behind retargeting ads for new product launch and launch strategy. See, retargeting ads, I'll try and explain maybe first for the audience. Retargeting ads ये हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट को किसी ने परचेज किया है लास्ट 30 डेज में और 7 डेज में, 14 डेज में, वट एवर विंडो आई चूज, मैं उस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ. एक केस ये हो सकता है कि किसी ने मेरे प्रोडक्ट को व्यू किया है अगेन किसी एक विंडो में लास्ट 30 डेज, 14 डेज, 7 डेज, मैं उस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ. माई क्वेश्चन इज, कुछ लोग प्रो रीटारगेटिंग होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं रीटारगेटिंग करना ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. या फिर वो मिस कर देते हैं, दिमाग में नहीं आता है कि रीटारगेटिंग भी करना चाहिए. ज़्यादातर ऑडियंस ये वाली है कि दिमाग में ही नहीं आता है. बट देन रीटारगेटिंग कहाँ चलता है? In my experience would be, if you are doing views remarketing, people who have viewed your product in last 30 days and you want to target those people wherever they, let's say, shop on Amazon on different products, different placements, make sure कि वो प्रोडक्ट जिसको आप अब एडवर्टाइज कर रहे हो या जिसकी रीमार्केटिंग आप कर रहे हो उसके अच्छे खासे सेशंस हों, मीनिंगफुल सेशंस तो हों. अब लोग क्या करते हैं, टॉप ऑफ द फनल बिल्ड नहीं किया और रीमार्केटिंग रन कर रहे हैं, एंड देन दे से कि रीमार्केटिंग पे स्पेंड नहीं होता. स्पेंड कैसे हो गया? ऑडियंस ही छोटी है. 100 लोग आए हैं आपके एक महीने में, अब 100 लोगों को बार बार कितनी बार दिखाएगा वो ऐड? कितना पैसा खर्च कर देगा उन 100 लोगों के लिए? And it is still CPC. हाँ. क्लिक करेंगे तभी स्पेंड होगा. हाँ, CPC है. अब पॉइंट ये है, खर्चा नहीं होता, बोलते हैं अच्छा रीमार्केटिंग ऐड ही खराब है. आपकी चॉइस खराब है यहाँ पे, रीमार्केटिंग खराब नहीं है. इफ यू डू द राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन देन इट वर्क्स वंडर्स. एंड इन फैक्ट मोस्ट केसेस इफ यू रीटारगेट विद योर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, वो अच्छा चलता है मोस्ट केसेस, क्योंकि उस पर अच्छे खासे ऑडियंस है, वो एक प्रूवन प्रोडक्ट है, उसका कन्वर्जन रेट वैसे भी अच्छा है, इन जनरल एल्गोरिदम उसे सपोर्ट करती है, तो अच्छे CPCs पे, अच्छे VCPM पे भी आपको रीटारगेटिंग अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं. सो एक ये तरीका है. देन देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर इन कंज्यूमेबल्स कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल लॉन एंड गार्डन एक कैटेगरी है, मैंने इस पौधे में डालने के लिए लेट्स से फर्टिलाइजर ऑर्डर किया है. वो फर्टिलाइजर डल गया ना, मुझे हर 3 महीने में डालना है. So every 3 months I have to purchase, or let's say every month I have to purchase depending upon which packaging I have bought. Let's say if you are into fitness, let's say you have bought whey protein. Whey protein is उसका जो एक कंटेनर आएगा वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, या let's say 2 महीने में खत्म हो जाएगा. So I have to retarget these people so that they can keep on purchasing from me again. ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स याद रखें कि मैंने मसल ब्लेज से खरीदा था तो मैं मसल ब्लेज से ही खरीदूंगा. बट बहुत सारे कस्टमर्स होंगे ना जो कहेंगे ठीक है मैं वे प्रोटीन दोबारा सर्च करूंगा, और उनको 70 ऑप्शंस दिख जाएंगे. हो सकता है उसके दिमाग में वो ऑप्शंस देख के आ जाए कि मैं दूसरा परचेज कर लेता हूँ. एक और यूज केस है ना, मुझे लास्ट डे याद आया कि मेरा डब्बा खत्म हो गया है. हाँ. अब मैं वहां पे वो देखूंगा कि सबसे फास्ट कौन डिलीवर कर रहा है या मेरे दुकान पे कौन सा मिल रहा है. करेक्ट. बट इफ आई एम डूइंग रीटारगेटिंग रेगुलरली, तो हो सकता है कि ना मेरा बॉक्स खत्म होने से पहले ही मुझे रिकॉल आ जाए, अरे हाँ ये खत्म होने वाला है, यहाँ पे रीटारगेटिंग ऐड दिख रही है, आई हैव टू परचेज इट अगेन. सो रीटारगेटिंग ऐड अच्छा चलता है, मोस्ट केसेस में अच्छा चलता है इफ यू स्ट्रेटजाइज इट वेल. एंड दीज आर मे बी 1 or 2 strategies that I wanted to talk about. The best thing about what I like about retargeting ads is that it is a CPC ad still. Ideally अगर ऐसे देखें एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, Amazon को देखना अगर चाहिए तो it should be VCPM.
हाँ, it's technically VCPM by the way. Do you know that? So बैक एंड पे क्या होता है कि ये VCPM एड यही ऑडियंस बेस्ड, जितनी भी ऑडियंस बेस्ड एड्स हैं SD में या DSP में, सब इज बेस्ड ऑन व्यूज. यू परचेज व्यूज, बट देन वो क्या करते हैं, उस व्यूज को कन्वर्ट कर देते हैं CPC में आपके लिए. अगर आपने चूज किया हुआ है कि आपको कन्वर्जन बेस्ड एड चलानी है, अगर मैंने 1000 विजिटर को दिखाया एड और उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया तो आई पे फॉर 10 क्लिक या वो 1000 यू स्टिल पे फॉर 1000 व्यूज. Retargeting. हाँ, एनी रीटारगेटिंग. बट देन वो उसको कन्वर्ट करके CPC में दिखाता है. अब वहाँ पे 3 चॉइसेस होते हैं SD में. एक होता है कि मुझे कन्वर्जन बेस्ड टारगेटिंग करनी है, एक होता है सेशन बेस्ड टारगेटिंग करनी है, एक होता है मुझे आई थिंक एक और ऑप्शन होता है इन विच यू जनरली टारगेट टॉप ऑफ द फनल, राइट, जो VCPM एक्चुअली में दिखता है. सो तीनों केसेस में चल बैकएंड पे VCPM ही रहा है. आपकी मीडिया बाइंग जो हो रही है बैकएंड पे वो व्यूज के बेसिस पे ही हो रही है. बट देन जो नीचे वाले 2 केसेस हैं, सेशंस और कन्वर्जन्स, उस केस में वो CPC पे कन्वर्ट करके दिखा रहा है. और वो सस्ती इसलिए भी पड़ती है क्योंकि अब वो ऑडियंस छोटा हो गया और उसी ऑडियंस को दिखाया जा रहा है जो ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा चांस है कन्वर्ट होने के, और एल्गोरिदम उस तरीके से बिहेव कर रही है. हो सकता है कि एक कस्टमर को 7 बार दिखाने से कन्वर्ट होता है, एक कस्टमर को 70 बार दिखाने से वो कन्वर्ट होता है. ये सारा डेटा अमेजोन के पास है. तो अगर आपने कन्वर्जन बेस्ड टारगेटिंग करी हुई है तो वो 70 बार देख के कर रहा है, उसको शायद उतना ज़्यादा ना दिखाए वो, तो मेरा व्यूज़ का पैसा वहाँ से बचा लेता है वो. उस कस्टमर को ज़्यादा दिखाएगा जिसका एक बाइंग बिहेवियर है कि ये क्विक बाइंग कर लेता है. तो दैट इज, आई मीन, ज़्यादा टेक्निकल चले गए ये सब. बट देन सिंस यू टॉक्ड अबाउट इट, आई थॉट मे बी आई शेयर. Sure. So I think we are done with the questions. Cool, we are good then. We'll wrap up. I hope you guys learned something out of it. And if in case you have any further questions, drop it down in the comment. You can get in touch with Shazib. He's our sales guy. If you want to talk anything Amazon ads in general, irrespective if you have an intention of partnering with us or not, he's in general good guy to talk to. I would love that you have the intention to. But even Makes sense. Cool. Chalo. All right. Thank you. Bye, guys.